Okay, guys, let's start. So very first thing, guys, we'll start read about Azure Storage Account, because Azure Storage Service, if we have to use that, can be used only through Azure Storage Account. Now, don't confuse yourself with this. Just because it says Azure Storage Account, that does not mean you have to uh, create some user ID or password या किसी तरह का कोई और portal पे जाना है, नहीं. It's simple. It's just a service. Like you create a virtual machine, उसी तरह से आप बस स्टोरेज का कुछ कुछ भी आपको बनाना है, दे कॉल इट एन अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, दैट्स ऑल. ये मेरा एक स्टोरेज अकाउंट है, दैट्स ऑल. आई एम क्रिएटिंग वन डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट. इसके अलावा एक और बना रहा हूँ, सो दैट्स अ डिफरेंट अकाउंट आई एम क्रिएटिंग. इफ आई वांट टू डू समथिंग विद इन दिस स्टोरेज अकाउंट, आई कैन डू दैट ऑल्सो. ठीक है, इज इट क्लियर? स्टोरेज अकाउंट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी और तरीके का अकाउंट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो. नो, दैट्स नॉट व्हाट यू डूइंग. It is just a service you're using, you're implying deploying the service. It is called storage account. Here service का नाम ही है storage account. Okay, now what does it say? Storage account is waiting for this candidate to join. Srishti, can you hear me? Okay, so I was talking about storage account. Right, somebody asked, is it infrastructure as a service? So who can tell me what service it is? Storage, is it infrastructure as a service, platform as a service, or software as a service? What do you think, guys? IS. Okay, and why do you think it's infrastructure as a service? It's the same like virtual machines. We are like they are handling the all the physical servers, right? Okay, anyone else who think it's a platform as a service or software as a service, anything? Yes, guys, anyone? We'll leave it up to you guys. You figure it out and let me know tomorrow. Storage, is it infrastructure as a service, platform as a service, or software as a service? You guys let me know that tomorrow. Or anyone who uh, figure it out quickly, they can put it in a group also. Another question was, can we have nested accounts or no? You cannot have nested account. एक storage account के अंदर दूसरा storage account नहीं बन सकता है. Okay. Okay, coming back to this, Azure Storage Account contains all of your Azure storage data, objects, blobs, files, queues, tables, hard disk,
disk as in this one virtual machine में जो हम लोग यूज करते हैं, that is what it is referring to. The storage account provides a unique namespace for your storage data that is accessible from anywhere in world over HTTP and HTTPS. Now, what do you understand by HTTP and HTTPS? कहाँ पे use किया जा सकता है HTTP and HTTPS? I mean, if I have to use something, if I want to access something which is on HTTP or HTTPS, which tool will I require to access that? Yes, Sana, correct. Yes, Henty, correct. But not any specific browser. Any browser should be fine. Yes, Henty, you're correct. So any browser, guys, right? Browser चाहिए हम लोगों को, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, इंटरनेट का कोई भी ब्राउजर, any browser which can be used for internet, that is sufficient enough for us to access our storage data which is there in our storage. Now, HTTP and HTTPS, what is the difference? So, what are the protocols for HTTP and HTTPS? Who can tell me quickly? We have practiced a lot, at least on these two. 80 and 443. Right. Okay. Now, data in your Azure storage account is durable and highly available, secure and massively scalable. इन दो चार मतलब का वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको जरूर यूज करना। आप इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आता है कहीं कि व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट, तो एज इट इज आंसर चिपका देना। ये प्रॉपर्टीज याद से होनी चाहिए, इवन इफ नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स बचे हुए और दिस लैंग्वेज एग्जैक्टली, बट दीज वर्ड्स शुड बी देयर। दीज वर्ड्स बचे हुए नहीं भी यूज करो तो फाइन, आप इसको रिप्लेस कर दो किसी से, दैट इज फाइन। बट यहाँ पर जो है ये वर्ड्स को यूज करना मत भूलना, ये इसके प्रॉपर्टीज है। क्योंकि स्टोरेज तो ऑन प्रीमाइसेस में भी है, व्हाई एम आई यूजिंग क्लाउड देन? क्लाउड क्यों यूज करूं मैं? ठीक है, वर्चुअल मशीन में तो समझ में आ गया मुझको कि आप थोड़ा सस्ता दे रहे हो मुझको, हार्डवेयर का ध्यान नहीं देना, ये सब नहीं करना है। क्लाउड में क्यों करूं? तो देयर आर बेनिफिट्स के क्लाउड में भी, ठीक है, आपको क्लाउड में भी स्टोरेज वगैरह का ध्यान नहीं देना है, हार्डवेयर फेलियर होता है कुछ अगर स्टोरेज में, डिस्क में, ड्राइव में, स्टिल क्लाउड विल टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा हाईली अवेलेबल है। हाईली अवेलेबल का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर कोई डाउन होता है तो इमीडिएटली उसका बैकअप, उसका रेप्लिकेशन जो है अज्योर दे देता है। एक तो है कि हम बैकअप कर रहे हैं खुद से, वो एक अलग चीज है, एक अज्योर क्या प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, सो व्हाई शुड वी गो विद अज्योर और फॉर दैट मैटर एनी क्लाउड, बट हियर वी टॉकिंग अबाउट अज्योर, सो आई विल से अज्योर. Why should we take Azure and not go to on premises? It is highly available. Now I have explained HA many times, right? So I'm not going to explain what is highly available. Highly available, which we just discussed, कि एक चीज है वो डाउन भी हो गई तो उसका रेप्लिका अवेलेबल है, कुछ भी है किसी भी तरह से Azure उसको काफी हद तक अवेलेबल रखेगा। इट इज वेरी सिक्योर। सिक्योरिटी जो Azure का नेक्स्ट लेवल का है। it is massively scalable. This is very crucial और बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है जो नॉर्मली ऑन प्रेमाइसेस इसको कंपेयर नहीं कर पाता है। व्हाट डज इट मीन नाउ? यहाँ पर सपोज ये मेरा जितना भी सेटअप है ये सब है, मैंने जो इनिशियली सोचा था इन सब के हिसाब से 5 TB का हार्ड डिस्क काफी था, बट स्टिल मैंने फ्यूचर कंसिडरेशन वो सब करते हुए जो है 7 TB का हार्ड डिस्क लेकर आ गया। ठीक है, ये मेरे इंजीनियर्स ने या आर्किटेक्ट्स ने सोचा था कि 5 TB शुड बी इनफ आने वाले 5 साल तक। लुकिंग एट मेरा ऐप का जो भी ग्रोथ है, सपोज मेरा कोई एप्लीकेशन चल रहा है या कोई वेबसाइट चल रही है, उसकी ग्रोथ देखकर कि 5 TB 5 साल तक चल जाएगा, बढ़िया सा है, उसके बाद हम सोचेंगे। एंड आई स्टिल थॉट से चलो 7 TB लेके आ जाता हूँ मैं, आई गॉट 7 TB, बट समथिंग हैपेंड, समथिंग वेंट वायरल, कोई यूट्यूब पे मेरा वीडियो वायरल चला गया, कहीं पर कोई फेसबुक पे वायरल हो गया, एंड पीपल सडनली नाउ वांट टू विजिट माय पेज। और इतना पेज विजिट कर रहे हैं, इतना वो अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि सडनली मेरा डेटा जो है भर रहा है यहाँ पर। और जो मैंने सोचा था 5 साल बाद होगा, ये मे बी 18th मंथ में ही ये 7 TB फुल हो गया, या किसी पर्टिकुलर डे पे भी। एंड दिस हैपेंस गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आई एम श्योर नाउ डेज ऑल ऑफ अस सी कि क्या 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 होता है एक वीडियो वायरल चले जाने से। कोई एक रेस्टोरेंट वायरल चला गया, कोई कोई एक छोटी सी चीज वायरल चली गई, उसके बाद लोग इतना विजिट करते हैं, उस पर इतना डेटा फ्लो होता है, ये सब होता है। मे बी कोई ऐसा ऐप था जहां पर फेस ऐप जैसा, कि जहां पर आप यंग पिक्चर अपलोड कर रहे हो, बूढ़े की आ रही है, बूढ़े की पिक्चर अपलोड कर रहे हो, यंग आ रही है, ठीक है, ऐसा कोई सडनली कुछ वायरल हो गया, एंड नाउ पीपल आर डंपिंग देयर डेटा, बहुत सारी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं। सो माई स्टोरेज कैपेसिटी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है ना। अब मेरा सर्वर या तो बंद हो जाएगा, सर्विसेज शट डाउन हो जाएगी, और उसके बाद जो आने वाले लोग हैं एंड दे विल कम एंड दे विल सी यार ये तो चलता ही नहीं, वेबसाइट में भी फेक था, व्हाटएवर इट। तो जो मेरा अपकमिंग बिजनेस है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट मी। नाउ पैसा तो है मेरे पास, ठीक है,
आई हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि ठीक है मैं यहाँ पर अभी इमीडिएटली एक और 60 टीबी का लाकर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, बट इज इट पॉसिबल? नहीं, इट इज नॉट दैट इजी। उसमें भी कम से कम 1 से 2 या 3 दिन लग जाते हैं सारी प्लानिंग करने में, परचेज करने में। इफ यू आर अ कंपनी, नो मैटर कितना पैसा है आपके पास, प्रोक्योरमेंट का हमेशा एक प्रोसेस होता है। यू आर एन इंजीनियर डज नॉट मीन यू नो कि मुझको ये डिस्क चाहिए, ये सब चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। दैट डज नॉट मीन यू विल सिंपली गो अहेड एंड मार्केट से परचेस करके लेके फिट कर दोगे, ये नहीं होगा। यू हैव टू सेंड एन ईमेल आपके मैनेजमेंट टीम को, मैनेजमेंट फाइनेंस को भेजेगा, फाइनेंस सेल्स वाली टीम को भेजेगा, एडमिन को भेजेगा, वो जो 4 कोटेशन मंगाएंगे, एक मीटिंग होगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगा किससे लेना चाहिए, कौन गारंटी दे रहा है, कौन वारंटी दे रहा है। उसके बाद एक वेंडर डिसाइड होगा, उसको पेमेंट की जाएगी, उससे अग्रीमेंट साइन होगा और तब वो लाकर लगाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन का पूरा प्रोसेस होगा ऑन एन अर्जेंट बेस पे, बोल रहा हूँ मैं। अर्जेंट बेस पे भी इतना होगा, उसके बाद जाकर कोई एक और 60 आएगा। 4-5 दिन में जितने लोग आना चाहते थे वो सब चले गए, आपका बिजनेस वैसे ही वेस्ट हो गया, आपका पूरा पैसा वेस्ट हुआ। ऑन दी अदर हैंड क्लाउड, क्लाउड में क्या है आपके पास? जस्ट अ सिंपल क्लिक, एक क्लिक, जैसे आप हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बढ़ाते हो ना, सेम वैसे ही है सब। इसको भी वो हार्ड डिस्क की कम ये कर लो, कंसिडर कर लो। यहाँ दिख रहा है आपको 200 जीबी और दिख रहा है कि यार डेटा बहुत बढ़ रहा है, आने वाले 4 घंटे में ये 500 जीबी होगा। वो यू विल सिंपली गो टू क्लाउड योर स्टोरेज, यहाँ पर जाओगे आप सिंपली, और जो भी उसका कैपेसिटी है उसको बढ़ा दोगे बस। आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ हियर, बहुत सारे ऑप्शन हमको कवर करने हैं, ठीक है। बट हार्ड डिस्क हमने देखा है, लेट मी शो इट टू यू अगेन। स्टोरेज पे आकर हम देखेंगे, एक एक ऑप्शंस को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर इफ आई थिंक कि यहाँ पर काफी ये हो रहा है और मुझको इसको रिसाइज करना, 127 GB है, सिंपली गो हियर एंड रिसाइज इट, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। साइज एंड परफॉर्मेंस में जाना है, कितना 100 ये है, ठीक है, लेट्स मेक इट 256, रिसाइज, दैट्स इट, डन। इतना इजी है क्लाउड पे, इसलिए इसकी ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज मैसिवली स्केलेबल। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक? Yes. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट वी हैव? स्टोरेज अकाउंट तो हमने देख लिया कि क्या है स्टोरेज अकाउंट में, कुछ चीजें हैं वो हम देखेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट वी हैव? जनरल पर्पस V2, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग अकाउंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, इंटरव्यू में यही पूछे जाते हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर देम, अच्छे से थरोली याद कर लो। Okay, one more thing, storage account name can contain only lower case, minimum 3, maximum 24, and it has to be unique. If I am giving any name, see, इस तरह से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह करके ये करना। इफ आई, गूगल इज ऑलरेडी टेकन, इट्स नॉट माई बी बाय मी, नॉट नेसेसरी कि मेरे ही अकाउंट में, कहीं पर भी, क्योंकि ये कहाँ पर यूज हो रहा है, HTTP एंड HTTPS, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पे चलने वाले हैं। सो इट्स नॉट मी, किसी ने भी कहीं पर भी कुछ लिया है अगर किसी और अकाउंट में जो मुझसे एफिलिएशन भी नहीं है, तो भी आई विल नॉट बी एबल टू यूज दैट। ग्लोबली यूनिक नाम होना चाहिए, तभी इट विल वर्क। नॉट श्योर TSOF will work or not, let's see। ठीक है, सो स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम इसको देखेंगे। और उसके बाद विद द अकाउंट व्हिच वी टॉकिंग, रिडंडेंसी क्या, विल कम टू दैट आल्सो। वर्जन वगैरह इन सबको हम जब बनाकर देखेंगे तो डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। नेटवर्किंग हर जगह सेम होती है, स्टिल विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है। सो दिस इज द अकाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट, जनरल पर्पस V2 अकाउंट, स्टैंडर्ड में मिल रहा है, प्रीमियम में ये और कैटेगरीज मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जनरल पर्पस V2 अकाउंट, इट इज बेसिक स्टोरेज अकाउंट टाइप फॉर ब्लॉब्स, फाइल्स, क्यूज एंड टेबल्स। अब ये ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल क्या है, विल सी दैट लेटर, जैसे जैसे नेक्स्ट इस पे जाते हैं हम वो आता रहेगा।
recommended for most scenarios using Azure storage. ठीक है, हम लोग भी इसी को यूज करोगे। आप लोग से भी कोई पूछता तो आप भी बोलेंगे हमारे यहाँ पर सारा जनरल पर्पस V2 अकाउंट ही यूज होता था। जनरल पर्पस V1 बहुत थोड़ा सा आउटडेटेड है, बट इसलिए है कि किसी की अगर आउटडेटेड एप्लीकेशन है, सो इट शुड नॉट हैपन कि वो उसके लिए, उस पर्सन के लिए या उस कंपनी के लिए वो हर्डल बन जाए अज्योर पे मूव करने के लिए, इसलिए रखा हुआ है। सो इट्स सेज लेगेसी अकाउंट टाइप फॉर ब्लॉब्स फाइल्स क्यू, मतलब थोड़ा ओल्ड टाइप का है। ठीक है, देन द थर्ड वन इज ब्लॉब स्टोरेज। ये बहुत कंफ्यूजिंग है गाइस, इसलिए एक सेशन में मेरे बोलने से आपको याद नहीं होने वाला। यू विल हैव टू रीड इट प्रॉपरली, थरोली लिख लो, अच्छे से याद करो इसको। व्हाई डू वी यूज इट? स्टोरेज अकाउंट विद प्रीमियम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक फॉर ब्लॉब्स एंड अप एंड ब्लॉब्स, recommended for scenarios with high transaction rates or scenarios where the smaller objects are required consistently low storage latency. Anyone who can explain this? Yes, anyone wants to try? That's okay, we'll do it. uh, so what does it say? That storage account with premium performance characteristic, कौन सा वाला, किसकी बात कर रही है? blob storage account. Sorry guys, if I take premium blobs, this is what we're talking about. Guys, you are getting it right? If I click on standard, जनरल पर्पस V2 हम लोगों ने देख लिया। इफ आई गो ऑन प्रीमियम, प्रीमियम में ये है, इसमें भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ब्लॉब्स। ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज। तो कब यूज करेंगे हम इसको? व्हाई वुड वी यूज इट एंड व्हेन वुड वी यूज इट? इट इज रिकमेंडेड फॉर सिनेरियोज वेयर हाई ट्रांजैक्शन रेट्स, मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन काफी इसमें हो रहा है। सी नाउ स्टोरेज के भी बहुत सारे टाइप है। एक ऐसा टाइप है कि जहां पर मैं बहुत ह्यूज डेटा डंप करता हूँ या ह्यूज डेटा डाउनलोड करता हूँ, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है। ट्रांजैक्शंस का रेट मेरा जो है कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका डेटा का साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली हर कोई ये कर रहा है, हर एक सेकंड में 5 या 10 लोग या 15 20 1000 2000 लोग इसको यूज कर, लेकिन बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स है। मे बी एक एक MB का ऑब्जेक्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसे बेसिक से हमारे GIF वगैरह होते हैं, व्हाट्सएप पे यूज होने वाले इमोजीज होते हैं, या फिर इंस्टा पे यूज होने वाले इमोजीज वगैरह होते हैं जो डाउनलोड करते हो आप ऑनलाइन से, बहुत छोटे हैं लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो उस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली वी हैव फाइल स्टोरेज अकाउंट। फाइल स्टोरेज क्या बोल रहा है? रिकमेंडेड फॉर एंटरप्राइज और हाई परफॉर्मेंस स्केल एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन यहाँ पर मतलब ये कोई फन एप्लीकेशन वगैरह की बात नहीं चल रही, यहाँ पर कोई कंपनीज की बात चल रही है। यहाँ पर जो है आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो आप लोग यूज करते हो, सर्विस नाउ हो गया या फिर जिरा हो गया, इनकी इनकी बात कर रही है, या फिर CRM हो गया कोई बैंकिंग का, जहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो काफी मैटर करता है। राइट, तो उस तरह में हम लोग इस तरह का इस तरह का स्टोरेज अकाउंट यूज कर सकते हैं, फाइल स्टोरेज। देन देयर इज अ थर्ड वन, ब्लॉब स्टोरेज। ब्लॉब स्टोरेज में क्या है? लेगेसी ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट ओनली फॉर जनरल पर्पस V2, ये सिर्फ आता है जनरल पर्पस V2 के साथ, ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, इसको इतना भी डिटेल में इसकी जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आपको बहुत ज्यादा इसको, व्हाई एम आई नॉट स्पेंडिंग मच टाइम इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करने में, क्योंकि स्टोरेज इतना बड़ा टॉपिक है दैट यू गाइस विल नॉट गेट मोर देन 5 या 6 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 10-12 क्वेश्चंस इसी में बन जाएंगे। बट यस, इफ एनीवन वांट्स, किसी को और डिटेल में ये करना है, लेट मी नो, मे बी आई कैन हैव वन सेशन विद दोस पीपल, या फिर इसी सेशन को हम एक्सपैंड करेंगे, इसी को मतलब नॉट टुडे, इसी सेशन में, रिकॉर्डेड सेशंस में ही उसको हम ये कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो, आई मीन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है इतने सेगमेंट पर, इस सेक्शन पे। जो ज्यादा पूछने वाले हैं वो यहाँ पर है, इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट दैट इज स्टिल फाइन, इसको मगअप कर लो, इजिएस्ट वे।
इसको आप समझने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन में भी नहीं काम में आने वाली है बहुत ज्यादा, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको इसमें भी काम में नहीं आने वाली है बहुत ज्यादा, इंटरव्यू में भी काम में नहीं आने वाली है। ठीक है, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, याद कर लो, दैट शुड बी इनफ। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट। जनरल पर्पस V2, V1, ब्लॉब, फाइल, ब्लॉब स्टोरेज। इनकी सपोर्टेड सर्विसेज कौन सी है, ये नाउ विल लुक एट द सर्विसेज। ये टेबल, दिस फाइल इज विथ ऑल ऑफ यू, इसको पढ़ो अच्छे से। रिडंडेंसी अब तक हमने शुरू नहीं किया है, विल स्टार्ट रीडिंग रिडंडेंसी। ये है रिडंडेंसी वाला कॉलम। सो अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें सबके साथ नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक फाइल स्टोरेज, इसके साथ RAGZRS नहीं आता है। यू सी, फाइल स्टोरेज के साथ RAGRS नहीं आ रहा है, which comes with blob storage. Now what is it, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, so don't worry. But are you getting the concept कि इनका मतलब क्या है अकाउंट टाइप का, कि किसी अकाउंट टाइप में कुछ फीचर्स आ रहे हैं, किसी अकाउंट टाइप में कुछ फीचर्स नहीं आ रहे, कोई किसी के लिए बेटर है, कोई किसी के लिए ये है। मोस्टली यूज है हमारा जनरल पर्पस V2, हम ज्यादा फोकस इसी पे करेंगे। एंड इफ यू सी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सपोर्टेड हियर, सर्विसेज भी और रिडंडेंसी भी, और ये चीप भी है। इज इट क्लियर गाइस, स्टिल हियर? सर्विसेज, इसी चीज को हम लोगों ने नीचे थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखा है यहाँ पर मैंने। ब्लॉब सर्विसेज में क्या क्या आता है, कंटेनर, इट कैन बी पब्लिक एक्सेस, लेट इट बी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, वेट। पर्टिकुलर स्टोरेज टाइप इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, यस, बट वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम। यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, यू गाइस गो थ्रू दिस वंस। हम सेशंस में सारे डिस्कस नहीं करेंगे, जो ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और जो ज्यादा क्रूशल है विल डिस्कस दैट। लेट मी सी, इसको पढ़ने की जरूरत है क्या? ओके, जैसे ब्लॉब सर्विस में क्या क्या कवर होता है। सो कंटेनर्स ब्लॉब सर्विस में आता है। नाउ व्हाट इज कंटेनर, विल सी दैट। और कंटेनर के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पर दिया है। कंटेनर के अंदर आता है पब्लिक एक्सेसिबल ब्लॉब, पेज ब्लॉब, अपेंड ब्लॉब, hot cool and archive tier, blob versioning. I'm not explaining this guys, I know, I'm just reading it, but जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, वो बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है आपके काम, ना इंटरव्यू में पूछे जाने वाली, ना एग्जाम में आपके, और ना ही एक्चुअल काम में आपको वो काम आने वाली है। कस्टम डोमेन, दैट इज फाइन, इसको छोड़ दो। So read this once, file services, table services and queue services. Okay, स्टोरेज अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है दैट विल सी नाउ। उसके पहले एक बार क्विकली मैं इसको पढ़ लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन, okay, let's leave the configuration also. Let me go to portal once. Maybe that will clear few uh, doubts. So here I'm creating a storage account from scratch. I hope all of you got it कि यहाँ पर मैं कैसे आया। इधर I'll see it यहाँ पर, अगर recently use की मैंने सर्विस तो, otherwise I'll go here and search for storage account. Ultimately I'll be here, I'll see my existing storage accounts here. If I want to create new one, I will click on create. I will select my subscription. In this case, I want to go with this one. I'll select my resource group. I'll go with this one. Name. Will this work, guys? What do you think? This name, TSOF session. No, Why not? it should be in lowercase. Right. Right. And why is it not working now? There's a hyphen and alphanumeric. Okay. So remember this thing, that it has to be in lowercase. ये इंटरव्यू में बाय द वे कोई नहीं पूछने वाला है कि कैन यू
create a storage in uppercase. I mean, if we are going with 2 or 3 years of experience, इतना silly question कोई नहीं करेगा. But this is something which will be useful for you while working. ये सारी छोटी मोटी चीजें. That time it should not happen कि आप गलती से ये कर रहे हो. Numeric is fine. Only special character should not be there. See, number is there. Numeric is fine. Yes, aunty, correct. Alphanumeric. So it should not happen कि आप छोटी सी गलती कर रहे हो, टी कैपिटल लिख रहे हो और फिर जाके पूछ रहे हो किसी का ये बन क्यों नहीं रहा है. तो ये बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए. These are useful for working. Region, all of us know कि region क्या होता है. We have discussed this now many times. जो वहां पर region का value है in your VM वाला VM बनाते वक्त सारी चीजें, सारी फैक्टर्स यहाँ पर भी कंसीडर होगी और सारी चीजें सेम होगी रीजन के लिए. So we'll go with East US. As of now, we are planning with general purpose V2. Locally written in क्या है इसको हम पढ़ते हैं. LRS, GRS, ZRS, GZRS, ये सब क्या है इसको हम पढ़ते हैं. फिलहाल let me show it to you. As of now, I've selected LRS. Advanced में क्या है this? Required transfer for REST APIs operation. REST API operation जहां पर भी कि ये स्टोरेज अकाउंट जो आप बना रहे हो, यहाँ ये जो आप स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो, ये किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है. इज इट गोइंग टू बी यूज इन सम प्रोग्रामेटिक एक्सेस, मतलब किसी सॉफ्टवेयर में यूज होने वाला है कि कोई एप्लीकेशन है जो इसमें से बस फेच करने वाली है. एग्जांपल के लिए कोई लेट्स से किसी ने कोई ऐप बना दी दैट इंडियन हिस्टोरिकल पिक्चर्स, और मेरे पास बहुत सारे 10-12 हजार पिक्चर्स पड़े हुए थे. मैंने किसी एक स्टोरेज अकाउंट में डाल दी और एक ऐप ये कर दी और ऐप के थ्रू इसको एपीआई से जोड़ दिया. पीपल विल डाउनलोड दैट ऐप और बस उसको रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं और बस कोई भी रैंडम पिक्चर देख रहे हैं. दैट्स इट. पिक्चर है, उसके नीचे कैप्शन में लिखा है कि ठीक है, दिस इज ताजमहल, दिस इज उज्जैन मंदिर, ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये लाल किला है, ये है. बस इतना ही छोटा सा ऐप है मेरा. दैट्स ऑल. बट व्हाट इज हैपनिंग देयर, दैट रेस्ट एपीआई इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर. मेरा ऐप जो है, एंड्रॉइड पे जो ऐप है, वो डेटा को फेच करने के लिए एपीआईज को यूज कर रहा है. सो इफ आई हैव समथिंग दैट इन माय माइंड, अगर मेरे डेवलपर सी नॉर्मली आप लोग स्टोरेज अकाउंट क्यों बनाओगे? व्हाई वुड यू डिप्लॉय अ स्टोरेज अकाउंट, बाय द वे, बीइंग एन Azure admin or in deployment team, why would you create an storage account? For whom will you create? Sorry. Right, client के लिए. क्लाइंट, योर एप्लीकेशन टीम, डेवलपर्स जिनके लिए बना रहे हो, दे विल टेल यू कि हमारा पर्पस क्या है. सो तब आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट एपीआई इसमें है या नहीं है. बट अगेन एज आई टोल्ड यू, वो आर्किटेक्ट लेवल पे हो जाता है. आपको क्लियरली इसमें आ जाएगा रेस्ट एपीआई को चेक करना है या नहीं करना है. आपको सिंपल इतना आ जाएगा, चेक इट और अनचेक. बट इट इज गुड टू नो कि इसको चेक करने से क्या होता है और अनचेक करने से क्या होता है. तो अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो ये डेटा उस टाइप में काम में नहीं आएगा. बट आई वांट टू कीप इट चेक एज ऑफ नाउ. इनेबल ब्लॉक फॉर पब्लिक एक्सेस. अब मैं स्टोरेज रख रहा हूँ कि बस सेव करने के लिए रखना है, किसी को एक्सेस नहीं देना है, मुझको कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको अनचेक कर दूं. आई मीन दिस इज वेरी सिंपल, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट मोर. बट आई एम गिविंग कीपिंग दिस डेटा के बाकी सब एक्सेस करो, देख के एंजॉय भी करें, तो आई हैव टू कीप इट पब्लिक. सॉरी गाइस, इज इट क्लियर? पब्लिक एक्सेस का क्या मतलब है? Yes guys, yes, no, maybe. REST API, public access. Yes. Guys, are you getting it? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yeah. Enable storage account key access. Now there is a method, there is a way to access your storage account. ठीक है. Now storage account तो आपने बना लिया.
आपने इसमें 1000 पिक्चर्स भी रख लिए, उसको यूज करने वाले 10,000 लोग हैं। अब आप पूरे 10,000 लोग को यहाँ पर अपने पोर्टल का एक्सेस तो नहीं दोगे, राइट? जो पब्लिक है, जिनको आप यूज करना चाहते हो, इफ देयर इज इट इज थ्रू ऐप वगैरह यहाँ पर आ गया तो ठीक है, बट आई एम सेइंग कि चलो नहीं, ऐप के लिए भी नहीं है, बस यहाँ पर मुझको पिक्चर्स रखना है और लोग डायरेक्टली आकर एक्सेस करना चाहिए, बट पोर्टल का एक्सेस नहीं देना चाहता मैं, ठीक है? देन व्हाट विल आई डू हियर इज, इसको मैं इनेबल करूंगा। इसके थ्रू क्या होता है, की मिलती है, आई कैन शेयर दैट की विद पीपल एंड दे कैन using the browser and using that key they can access योर स्टोरेज, जितना भी जिस भी लेवल का एक्सेस आपने दे रखा है वो। इज इट क्लियर गाइस? it's either through Yes. browser or and there is a tool also। कल वाले इसमें होपफुली हम उस टूल को भी देखेंगे, Azure Storage Explorer को। so this is how it looks, Azure Storage Explorer। but be it Azure Storage Explorer और be it browser, किसी भी तरह से हो, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा if you want some people to access your storage। अगर स्टोरेज एक्सेस करना है तो keep this enable and then share the key with them, then only they will be able to access it। is it clear guys? Yeah. और आपने की दे दी और फिर भी इसको अनचेक रखा है, then still they can't see it। की तो है but what does it mean कि पब्लिक एक्सेस ही बंद कर रखा है। डिफॉल्ट टू Azure Active Directory authorization in portal, इसका क्या मतलब? if I check this, जो Azure Active Directory में जिस तरह की एक्सेसेस दे रखी है ना आप लोगों को मैंने, उससे देन डिसाइड होगा कि कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, Azure Active Directory में जिस तरह का लेवल है वो, बट वी आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है? TLS वर्जन वी आर नॉट डिस्कसिंग, दैट्स फाइन। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वर्जन, जिसको पता है ठीक है, नहीं भी पता है दैट इज फाइन, नो वन इज गोइंग टू आस्क। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, सो इट्स 1.2। ये पूछ सकते हैं आपके एनवायरनमेंट में कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है? यू हैव वर्कड ऑन स्टोरेज, सो टेल मी व्हिच वर्जन, व्हिच TLS वर्जन डिड यू गाइस यूज? 1.2, सिंपल। डिफरेंस क्या है 1.2 में 1.1 में 1 पॉइंट में, करते क्या है ये एग्जैक्टली? दे विल नेवर एवर आस्क। स्टोरेज का ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, बट हाँ जो डेली स्टोरेज पे काम कर रहा है उसको डेफिनेटली पता होता है कि करंट वर्जन कौन सा है। दैट यू कैन नॉट से कि नहीं वो हमारा काम तो है नहीं तो आई डोंट नो। मतलब इफ यू क्लेम दैट यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 5 years और आप रोज स्टोरेज अकाउंट बना रहे हो तो ये रोज आपकी नजरों के सामने से जाता है, सो इट वोंट हैपन कि आपको पता नहीं है। सो वर्जन 1.2 यू कैन से, जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हो अगर 1.3 आ गया तो बता देना कि वी आर स्टिल यूजिंग 1.2 बट आई कैन सी 1.3 आ गया है, वैसे अभी कोई न्यूज़ तो देखी नहीं माइक्रोसॉफ्ट की। क्लियर गाइस यहाँ तक? Yes. ओके, डेटा लेक स्टोरेज हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस एट ऑल। ब्लॉब स्टोरेज विल डिस्कस। क्रॉस टेनेंट रेप्लिकेशन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ रेप्लिकेशन वाले इसमें। एक्सेस टियर, हॉट, कूल एंड देयर इज वन मोर आर्काइव, उसको भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एज ऑफ नाउ जस्ट वांट टू शो दिस टू यू। नेटवर्किंग, नाउ व्हाट डज इट से? सी आपने यहाँ पर तो ये कर दिया कि इनेबल स्टोरेज यूजिंग एक्सेस की और पब्लिक की, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। पब्लिक में कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होगा? Internet connectivity. इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक आईपी, एक कुछ तो ये कोई यूआरएल समथिंग विल रिक्वायर, राइट? लाइक वीएम को अगर हमको पब्लिक इस पे करना तो नेटवर्किंग में आके हम पब्लिक आईपी असाइन करते हैं, इस पे लिटरली पब्लिक आईपी हम उस तरह से नहीं असाइन करते बट इन अ वे वही हो रहा है। सो यू कैन कनेक्ट योर स्टोरेज अकाउंट ईदर पब्लिकली वाया पब्लिक आईपी एड्रेस और सर्विस एंड पॉइंट्स, ठीक है, और प्राइवेटली यूजिंग अ प्राइवेट एंड पॉइंट। फिलहाल हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, फिलहाल वी वांट टू सी इट पब्लिकली, प्राइवेट पे बाद में आता है। सो क्या सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर? इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सिलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क्स एंड आईपी, और डिसेबल पब्लिक। तो अगर मैंने यहाँ डिसेबल कर दिया और उसको इनेबल भी रखा है मैंने, इनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, इनेबल ये, और यहाँ पर आके डिसेबल कर दिया, सो डू यू थिंक इट विल वर्क? क्योंकि मैंने एक्सेस लेवल पे तो हाँ बोल रखा है बट नेटवर्किंग लेवल पे मैंने बंद कर रखा है। And if I say enable public from a selected virtual network, so I will have to select a virtual network। यहाँ पर एक virtual network select करना पड़ेगा,
और यहाँ पर चाहिए तो उसका एक सबनेट सेलेक्ट करना पड़ेगा. नाउ only connections which are coming within Azure from this subnet, from this VNet, वही इसको एक्सेस कर पाएंगे अगर उनके पास की है तो. अगर आपके पास की है and if you are not part of this subnet and this VNet, तो आप ये नहीं कर सकते हो, तो एक्सेस नहीं कर सकते हो. Is that clear, guys? Now do you understand why is it important to select region here? अगर मुझको वो मेरे माइंड में पहले ही था कि मुझको किसी एक पर्टिकुलर सबनेट को ये करना है और वो वीनेट मेरा वेस्ट यूएस में है और मैं अपना स्टोरेज ईस्ट यूएस में बना रहा हूँ, तो वो यहाँ पर अपीयर ही नहीं होगा. व्हेन आई गो टू नेटवर्किंग, तो यहाँ पर मेरा वो वाला वीनेट दिखेगा ही नहीं मुझको. ठीक है. बट इन दिस केस व्हाट आई वांट कि नहीं, मुझको डिसेबल भी नहीं करना और किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना. मुझको चाहिए कि इनेबल पब्लिक एक्सेस. कहीं से भी जिसके पास भी मैंने अपना अगर मैंने शेयर लिंक शेयर कर रखा है, ही शुड बी एबल टू एक्सेस. सो दिस इज व्हाट आई लाइक. प्रेफर्ड राउटिंग माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क या इंटरनेट राउटिंग, तो हम लोग इंटरनेट ले लेते हैं. रिकवरी ये डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग. इनेबल सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिलीट करेंगे. एज ऑफ नाउ आई एम अनचेकिंग देम, उसको मैं बताता हूँ बाद में कि चेक करता तो क्या होता था और क्या नहीं होगा. Encryption we'll discuss later. Tags we have already discussed. Review and create. I'm creating one. This is not at all done, guys. ठीक है, this is just an overview. जितने pages हमने next किए उस हर पेज पे हम फिर से जाने वाले हैं, फिर से उस पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं. These concepts जिनको हमने सिर्फ अभी पढ़ा है, इसको हम पूरा डिटेल में ये पढ़ेंगे. नॉट दीज टॉपिक्स जो नहीं पढ़ने वाले, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. जितने मैंने अगर नहीं बोला है स्पेसिफिकली कि वी आर नॉट रीडिंग दिस, वी आर डेफिनेटली रीडिंग देम. देन इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, रीजन पेयर क्या है, दिस वी आर गोइंग टू रीड. ये क्या है, हॉट एंड स्टोरेज एंड आर्काइव वाले टीयर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू रीड. ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. स्टोरेज इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम. ठीक है. नाउ माय स्टोरेज अकाउंट इज रेडी. सिंपल, दैट्स ऑल. स्टोरेज अकाउंट में मेरे पास है कंटेनर, मेरे पास है फाइल, क्यूज एंड टेबल्स. कंटेनर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फाइल शेयर थोड़ा डिटेल में, क्यूज नॉट आवर जॉब, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, एंड टेबल्स. सो गाइस आई थिंक इट्स अबाउट टू फिनिश फॉर टुडे. We'll see you tomorrow. Watch the video again, read the concepts, and tomorrow we'll start again. थोड़ा सा background फिर से बनाने से शुरू करेंगे. और if you guys want, do not create an account, guys. Do not try to create one because वो delete होता नहीं है जल्दी. I'll share few tips and tricks with you. कल हम बनाएंगे इस पे. Just go through the theories today. ठीक है guys, we'll stop the session. It's 1 minute left. Thank you. ठीक है. चलो, see you guys. If any questions, Thank you. please drop it in the group. Thank you. Bye.